Namaste everyone and welcome to yet another set in this fantastic series where we're covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be taking you through CAT 2023 का slot 1 का एक set. Let's quickly apply our fate framework to decide whether this set could have been done or not. So a visa processing office accepts visa applications in 4 categories: US, UK, Shenzhen and others. The applications are scheduled for processing in 20-15 minute slots starting at 9 a.m. and ending at 2 p.m. So just on the basis of reading these two lines, चार अलग अलग categories ये हैं, US, UK, Shenzhen and others. And इन चार categories में हमारे पास 15-15 मिनट के सुबह 9 बजे से 2 बजे तक you have what 4 slots 15 minutes के in every hour और ऐसे 5 घंटों में 20 slots total. So they've said 20-15 minute slot. This is too much data to process in terms of number. हो सकता है कि हर एक के मैपिंग ना करनी पड़े, but this is not something that is very familiar to us in terms of solving sets. So I'll say familiarity में I'll rate this not very high. I'll put across. Ambiguity of clues. Just reading few sentences here and there. So they are saying applicants are called in processing sequentially, first come first serve basis पे. And whenever a counter gets freed for their category, the processing time for an application is same within each category. मतलब US के लिए processing time same, UK के लिए same, Shenzhen के लिए same and so on. तो ये processing time same रहेगा, but it may vary across categories. मतलब US UK का अलग हो ऐसा हो सकता है, but आगे वो बोलते थे कि US UK का it takes 10 minutes. So not too difficult. Let's look at this line. Depending on the number of applications in a category and time, the time required to process an application for that category, it is possible that an applicant for a slot may be processed later. Now, this is a very interesting clue. आपने कैंडिडेट को एज एन एप्लीकेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पे बुला लिया, लेट्स से 9 बजे के स्लॉट पे बुला लिया, बट अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को बुला लिया, अगर आपने काउंटर्स कम हो और अगर ऐसा है और या प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा हो, तो हो सकता है कि उनको अगले बैच में प्रोसेस करें. मतलब बुला किसी पर्टिकुलर टाइप पे लिया लेकिन प्रोसेस बाद में हो रहा है. बेसिकली इट इज अ डिले दैट इज हैपनिंग कि आपको जिस टाइम स्लॉट पे बुलाया डज नॉट मीन दैट उस टाइम स्लॉट में आपका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विथ एंड आई विल से कि आई विल नॉट वांट टू पिक सच अ सेट जहां पे होता क्या है, अगर आपके फिक्स स्लॉट हो भाई 9 से 9:10, 9:10 से 9:20, 9:20 से 9:30 और आपको फिट इन करनी हो वैल्यू, सो इमेजिन 20 मिनट का प्रोसेसिंग टाइम है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए. यूएस यूके के लिए तो 10 ही है, बट अगर ऐसा आ गया तो जस्ट आई एम थिंकिंग आउट लाउड एंड सेइंग कि नहीं, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल विद. कि चालू तो आपने 9 बजे कर लिया, 9:15 पे किसी को बुला लिया, अब वो प्रोसेसिंग पहले वाले की 9:20 तक चल रही है. नॉट समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डील विद. टाइम कंजम्पशन देयरफॉर विल पॉसिबली बी मच, ऐसा अजम्पशन है मेरा, बट वी कैन पुट अ क्वेश्चन मार्क. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस अगर क्विकली ग्लांस करें तो there are 2 theta based questions, remaining 3 MCQs. What is the maximum possible value? So there is a possibility in this question. एक question में तो है which of the following is closest to the type. Again points to a possibility कि भाई multiple possibility होंगी, उनमें से जो option closest मिलेगा. Which of the following is false, can have multiple options that we'll have to verify and check. And when did the application? तो ये definite answer है. तो again extra info in questions is also not really in our favor. I'll say कि इसके सिंगल आउट क्वेश्चंस अगर ट्राई करने हो तो फिर भी पॉसिबली कर सकते हैं कि आप 5, 6, 7 मिनट आप पूरा सेट पढ़ोगे, समझोगे, उसमें शायद पार्शियल क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. दैट इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट टेक अवे. अदरवाइज जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव बिफोर वी सॉल्व, दिस वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स इन दैट पर्टिकुलर स्लॉट इन दैट ईयर. तो कैट 23 का ये वन ऑफ द टफेस्ट सेट्स माना गया. एंड the bigger reason was ambiguity of clues. We'll understand कि एक क्लू ऐसा है जो एग्जाम के प्रेशर में वैसा एंटिसिपेट करना पॉसिबल ही नहीं है, उसके मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं. तो ये सेट डेफिनेटली नॉट डू. इनफैक्ट लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स रेज्ड ऑब्जेक्शंस, जेन्युइन ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे कि इसके 2 क्वेश्चंस तो कंसिडर नहीं करने चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, पर नोबडी रियली, कैट अथॉरिटीज की तरफ से कोई चेंज नहीं आया. बट द होल आइडिया इज दैट इट वाज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम्बिग्विटी बहुत ज्यादा थी. तो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर एंड ट्राई टू इवैल्यूएट कि कैसे अप्रोच करें. सो वीपीओ एक्सेप्ट्स वीजा एप्लीकेशंस इन 4 कैटेगरीज: यूएस, यूके, शेंजन एंड अदर्स. द एप्लीकेशंस आर शेड्यूल्ड फॉर प्रोसेसिंग in 20-15 minute slot starting at 9 a.m. and ending at 2 p.m. 10 applications are scheduled in each slot. All right. तो अब अगर मैं स्लॉट्स का जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूं तो विल से यूके के लिए यू हैव व्हाट
देयर आर 10 काउंटर्स एंड 4 डेडिकेटेड टू यूएस। तो यूएस के लिए 4 काउंटर्स C1 C2 C3 C4 ऐसे आपको मिल जाएंगे। देन यू हैव यूके के लिए एंड रिमेनिंग अदर्स के लिए 2 ईच। तो मैं काउंटर्स पहले लिस्ट डाउन कर रहा हूं कि यूके के लिए 2 काउंटर्स, शेंजन के लिए यू विल हैव 2 काउंटर्स एंड अदर्स की कैटेगरी के लिए यू विल हैव 2 काउंटर्स। ओवरऑल ऐसे 10 काउंटर हो गए। नाउ दे आर सीइंग प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। 20 स्लॉट्स बनाए हैं सुबह 9 बजे से, मतलब थिंक ऑफ इट दिस वे, सुबह 9 बजे से आपके स्लॉट्स ओपन हो गए हैं। वीजा एप्लीकेंट्स यहां आके बैठ सकते हैं और अपना प्रोसेसिंग करवा सकते हैं वीजा का। सो व्हाट आर दे सेइंग, 15 मिनट्स के स्लॉट्स हैं, मतलब अगला स्लॉट 9:15 बजे स्टार्ट होगा, 9:15 पे नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा एंड एंड एट 2 PM। हाउ विल इट एंड एट 2 PM? जब लास्ट स्लॉट कब चालू हो रहा है, 1:45 PM पे। तो 15 मिनट के स्लॉट है, तो 9 बजे से 9, 9:15, 9:30, 9:45, 1 घंटे में 4 स्लॉट। फिर अगली बार 10, 10:15, 10:30, 10:45 4 स्लॉट। ऐसा करते करते 1:45 पे आपका लास्ट स्लॉट रहेगा। तो या तो इस तरह का बड़ा सा मैट्रिक्स बनाने का थॉट दे कि हम एलोकेशन करें, पर अगर देखें तो ऐसे एप्लीकेंट्स दोस्त इतने सारे नहीं दिए हुए हैं हमें कि ये फिट इन करना पड़े। सो मे बी द सेट इज आस्किंग समथिंग एल्स। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैपिंग की हो क्या रहा है। सो 20 स्लॉट्स आर देयर 15 मिनट्स के एंड दे आर सेइंग दैट 10 एप्लीकेशंस आर शेड्यूल्ड इन ईच स्लॉट। 10 एप्लीकेशंस पर स्लॉट। और स्लॉट्स कितने हैं? टोटल स्लॉट्स है ऐसे 20। तो थिंक ऑफ इट दिस वे, एक स्लॉट में 9 बजे के स्लॉट में दे आर सेइंग 10 एप्लीकेशंस। आई एम नॉट सेइंग कि 10 की 10 ये 10 काउंटर हैंडल करेगी। हो सकता है एक काउंटर एक से ज्यादा एप्लीकेशन किसी स्लॉट के हैंडल कर रहा हो। तो डोंट गो बाय दिस कि ऐसा हम assumption मान ले कि हर जगह एक एक एप्लीकेशन हो रही है, पर ये पता है कि 10 एप्लीकेशन है भाई। यहां पर 10 एप्लीकेशन है, यहां पर 10 एप्लीकेशन है, यहां पर 10 है। ऐसा करते करते पूरे 20 के 20 स्लॉट्स में 10 एप्लीकेशन है, मतलब आई कैन से 200 एप्लीकेशन आर देयर। वीजा की 200 एप्लीकेशन आएंगी। नाउ दे आर सेइंग कि ऐसी 200 एप्लीकेशंस हैं एंड फाइनली एप्लीकेंट्स आर कॉल्ड इन फॉर प्रोसेसिंग सब्सिक्वेंटली ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसे काउंटर खाली होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको बुला लेंगे। द प्रोसेसिंग टाइम इज द सेम विद इन ईच कैटेगरी और यूएस यूके के लिए 10 मिनट्स है। तो हमें ये पता है कि 10 मिनट में प्रोसेसिंग हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज कोई पर्सन एप्लीकेंट आता है यूएस के वीजा के लिए और उसे काउंटर 1 खाली दिखता है, 9 बजे आ जाता है, 9 बजे सीधे वो काउंटर 1 में चला जाएगा, 10 मिनट लगेंगे, 9:10 पे वो बाहर हो जाएगा, 9:10 पे दैट पर्सन विल गेट द वीजा प्रोसेसिंग डन। अब वो वीजा मिलता है नहीं मिलता, दैट्स अनदर स्टोरी, एंड वेदर यू वुड वांट टू अप्लाई फॉर यूएस वीजा नाउ इज अनदर स्टोरी। बट 9:10 पे ये पर्सन काउंटर 1 से फ्री हो जाएगा, काउंटर 1 भी फ्री हो जाएगा। ऐसे यूके के लिए भी 10 मिनट है। तो अगर कोई 9 बजे काउंटर 1 में जाता है, कोई दूसरा पर्सन 9 बजे, तो 2 लोग आप साइमल्टेनियसली प्रोसेस करके खाली कर सकते हो। दैट इज द होल आइडिया। फर्दर they are saying depending it is possible that applicant may be processed later। मतलब अभी 10-10 मिनट है, सपोज इनका टाइम 10 मिनट से ज्यादा हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? 15 मिनट से ज्यादा हो जाए, वी डोंट नो। हाउ विल दे प्रोसेस इट, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट नोन टू अस। सो किसी एप्लीकेंट को बुलाया तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे है किसी स्लॉट में, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बाद में हो रही हो सकती है। एप्लीकेंट फॉर अ स्लॉट मे बी प्रोसेस्ड लेटर। 9:15 बजे वाले कैंडिडेट को बुला लिया है, जैसा जनरली ऑफिसेज में होता है कि आप 9:15 बजे से बैठे हो, आपका नंबर आ रहा है 10:15 बजे, तो डिले हो गया क्योंकि एप्लीकेंट्स पहले वाले बहुत सारे हैं और प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत सारा है। समथिंग लाइक दिस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऑन अ पर्टिकुलर डे IVN were scheduled for Schengen visa processing in that order। in that order इंपॉर्टेंट है कि पहले I फिर V और फिर N है। They had a 9:15 AM slot but entered the VPO at 9:20 AM। Imagine 9:15 बजे का स्लॉट है, 5 मिनट लेट एंटर कर रहे हैं लोग, 9:20 पे आ रहे हैं, ठीक है। When they entered the office, which means 9:20 AM की बात कर रहे हैं, exactly 6 of the 10 counters were either processing or had finished processing one and ready to start processing the next। अब this is where एग्जाम के सिनारियो में अगर कोई इस क्लू को पढ़ेगा तो एटलीस्ट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं अगर एग्जाम में इस क्लू को पढ़ता तो मैं ये मीनिंग निकलता कि जब 9:20 पे एंटर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 6 आउट ऑफ 10 काउंटर्स या तो प्रोसेसिंग कर चुके हैं एप्लीकेशंस की, या फिर मतलब प्रोसेसिंग कर चुके हैं और रेडी है नेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए, या फिर अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा हर काउंटर पे तो यही होगा। फॉरगेट अबाउट द सेट, आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट विजुअलाइज द काउंटर। काउंटर क्या करेगा?
काउंटर या तो करेंटली अंडर प्रोसेस होगा, ऑक्यूपाइड होगा, या फिर ये होगा कि उसने प्रोसेसिंग अभी करेंटली कर रहा है या फिर जस्ट खत्म कर दिए और अब अगले वाले एप्लीकेंट को इनवाइट करने के लिए वेट कर रहा है, तो रेडी टू प्रोसेस द नेक्स्ट होगा। तो दो ही तो चीजें होंगी, या तो करेंटली ऑक्यूपाइड होगा तो प्रोसेसिंग होगा, या फिर ऑलरेडी प्रोसेस्ड एंड रेडी टू इनवाइट द नेक्स्ट कैंडिडेट। और क्या हो सकता है? तो मेरा डाउट ये आता कि एग्जैक्टली 6 में क्यों हो रहा है ऐसा, 10 के 10 में क्यों नहीं हो रहा, 10 काउंटर है तो दिस इज वन बिग एम्बिग्विटी। व्हाट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो देन देयरफॉर मींस इज, इसका मीनिंग अब मैं समझा दूं बिकॉज आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें ये कैटेगरी हो सकती है कि जो बचे हुए चार हैं या तो उनके एप्लीकेंसी कोई नहीं है, तो कुछ ऐसे हो सकते हैं काउंटर्स जिनके एप्लीकेंसी नहीं आए, या फिर एप्लीकेंट्स को आने में टाइम है। तो आपने वीजा तो फिनिश कर दिया प्रोसेसिंग प्रीवियस वाला एप्लीकेशन, जस्ट एज एन एग्जांपल सपोज 9 बजे किसी का टाइम स्लॉट है। अब इमेजिन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में 2 यूनिट लगते हैं, भाई 9 बजे आया, 9:02 पे फ्री कर दिया, 9:02 पे वीजा साइन करवानी है, बस साइन कर दी, एप्लीकेंट ने चला गया। अब उन्होंने अगले कैंडिडेट को बुलाया 9:15 बजे, वो आएगा 9:15 बजे, तो अभी 13 मिनट का गैप है, तो दे आर नॉट इवन रेडी टू प्रोसेस द नेक्स्ट, they have already processed one application, and this is the category that typically was meant by this clue. And I would say nobody would be able to guess this, और जो एक हाथ दो चार लोग बचेंगे वो 100 परसेंटाइल वाली कैटेगरी के रहेंगे। आई डोंट नो विच प्लैनेट डू दे बिलोंग टू, बट टिपिकली नॉर्मल जनता नहीं समझ पाएगी कि ऐसा भी कुछ सिनेरियो होगा कि बचे हुए लोग जो है उनका प्रोसेसिंग टाइम वैसा कुछ बन रहा है कि 9:20 पे कोई कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं है, एप्लीकेंट अवेलेबल ही नहीं है। दिस वाज द मीनिंग दैट वाज गिवन। एम एंड ओ वेर शेड्यूल्ड, इस तरह से अब बाकी के क्लूज हैं, उन क्लूज को यूज करके वी कैन ऑलवेज स्टार्ट अडैप्टिंग क्वेश्चंस। आई विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटिवली इजियर है, आई विल पिक देम फर्स्ट एंड देन सॉल्व द रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, लेट्स मूव टू दिस, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशंस वर शेड्यूल्ड ऑन द डे। तो टेबल यहां मतलब डेटा यहां समराइज है, पहले क्वेश्चन के लिए थॉट देते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। द फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल स्लॉट्स वेर फुल। तो अब मैं यहां लिख देता हूं कि हमारे पास यूएस, यूके, शेंजन एंड अदर्स, ये 4 कैटेगरीज हैं, और उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है दैट देयर आर 10 एप्लीकेशंस पर स्लॉट। रिमेंबर 20 स्लॉट्स थे और 10 एप्लीकेशंस पर स्लॉट, तो 20 into 10 हम बोल रहे थे 200 एप्लीकेशंस आएंगे। तो पर स्लॉट की अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, सो दिस इज फॉर 1 स्लॉट, किसी भी एक स्लॉट के लिए, तो वी नो कि टोटल 10 एप्लीकेशंस है पर स्लॉट। फर्दर दे आर सेइंग 50% ऑफ द एप्लीकेशंस वर यूएस एप्लीकेशंस, और हर स्लॉट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी उन्होंने बोल दिया है दैट द एप्लीकेशंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड equally, the number of US applications was same in all the slots, the same was true for all other 3 categories। मतलब स्लॉट 1, स्लॉट 2 ऐसे 20 स्लॉट है, हर जगह सेम नंबर आना है, और हर जगह सेम नंबर के कारण हर स्लॉट का टोटल 10 है, उसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट इन 4 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूशन समझ पाए। तो ये बोल रहे हैं 50%, मतलब 10 का 50% यूएस में, एक स्लॉट में कितनी एप्लीकेशन हो गई? 5। अच्छा, आई, वी और एन वेर शेड्यूल्ड फॉर शेंजन वीजा प्रोसेसिंग। तो शेंजन के लिए कम से कम 3 तो कैटेगरी आनी पड़ेगी, बिकॉज 3 लोगों को उन्होंने 9:15 के स्लॉट पे बुला लिया। तो कहना है से एस की कैटेगरी में यू विल एटलीस्ट हैव 3 एप्लीकेशंस पर स्लॉट। 3 से ज्यादा हो सकती है, बिकॉज 3 को बुलाया तो हो सकता है चौथे को भी बुलाया, मेंशन नहीं कराया, कम से कम 3 तो है। एंड यहां लास्ट क्लू एम और ओ का बोला है कि दे वर शेड्यूल्ड इन द 9:30 AM स्लॉट ऑन द डे फॉर वीजा प्रोसेसिंग इन द अदर्स कैटेगरी। तो एम और ओ ये 2 लोग आ गए अदर्स कैटेगरी में, तो कहना है से अदर्स की कैटेगरी में डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 का नंबर है। अगर आप इनको ऐड करें 5 और 3, 8 और 2, 10 तो मिनिमम वैसे ही हो गए, और अगर मिनिमम 10 वैसे हो गए तो गारंटी है कि यूके की जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 0 आई हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन, हाउ मेनी यूके एप्लीकेशंस वर शेड्यूल्ड ऑन दैट डे? आंसर इज 0। ठीक है, बढ़ते आगे। तो इफेक्टिवली मिनिमम 3, 2, 5 और 5, 10 तो वैसे ही हो गए। ये लॉजिक था। एक क्वेश्चन डेफिनेटली डुएबल था, बट वो ये सब पढ़ने समझने के बाद। तो जनरली lot of people would have skipped the entire set. Let's move to the next question. Now they are saying which of the following is closest to the time when Nandini's application process got over. तो अब ये जो डेटा है, this is for Schengen visa processing,
9:20 पे ये 3 लोग आए हैं, इसी ऑर्डर में इनका प्रोसेसिंग होना है, आई, वी और एन का। और आगे उन्होंने शेंगेन के लिए ये क्लियरली बोल के रखा है कि 2 काउंटर है ना, सिर्फ यूएस के 4 काउंटर्स हैं, बाकी तो 2 काउंटर्स पे। इज दिस फॉर श्योर दैट 9 o'clock पे 2 एप्लीकेंट्स आए होंगे? हाउ कम वी नो दिस? अभी पिछला क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करा तो वी सेड हर स्लॉट में शेंगेन के 3 लोग, हर स्लॉट में शेंगेन के 3 लोग, अदर्स की कैटेगरी में 2 लोग और यूएस की कैटेगरी में 5 लोग। तो इनफैक्ट शेंगेन की कैटेगरी में 3 लोग आने हैं। तो लेट्स नेम देम कि 9 o'clock पे यू विल हैव 3 पीपल एबीसी कमिंग इन फॉर वीजा प्रोसेसिंग। 9 बजे ए को सपोज ये काउंटर 1 मिल गया, 9 बजे ही सेकंड काउंटर बी को मिल गया, और अगला काउंटर जो C1 काउंटर है वो सी को यहां मिल जाएगा। ये तो 9 बजे वाले हो गए। अब अगला स्लॉट क्या है? अगला स्लॉट 9:15 का है, वहां पे फिर 3 लोग आएंगे। क्या ये 3 लोग हमें पता है? हाँ। कौन से 3 लोग हैं? दीज आर द 3 पीपल आई, वी एंड एन हु विल अराइव, who were supposed to arrive at 9:15 but they did not arrive at 9:15, they were 5 minutes late, they arrived at 9:20, but उनका स्लॉट तो 9:15 वाला था। इस ऑर्डर में आई, वी और एन, इस ऑर्डर में इनकी प्रोसेसिंग होगी। मतलब ईरा को जो काउंटर मिलेगा हाइपोथेटिकली वो सेकंड काउंटर मिल जाएगा यहाँ, विजय को यहाँ काउंटर मिल जाएगा और नंदिनी को काउंटर 2 यहाँ पैरेलली मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ द एलोकेशन विल गो फॉर 2 काउंटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग। और 9:20 पे आए हैं तो कितनी बजे इनकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी अभी कुछ पता नहीं है। एक अच्छा क्लू फिफ्थ वाला यहां दिया है, विजय वॉज कॉल्ड टू काउंटर एट 9:25 AM। विजय को प्रोसेसिंग के लिए बुला लिया है 9:15 बजे। विजय इज हियर, 9:15 बजे इसकी प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी, काउंटर पे बुला लिया है, विच मीन्स कैन आई से 25 मिनट्स में, सुबह 9 बजे से 25 मिनट में 2 लोगों की प्रोसेसिंग हो गई। एक पर्सन ए हाइपोथेटिकली जो हमने माना और एक ये सी। तो 2 लोगों की प्रोसेसिंग 25 मिनट में हो रही है, तो पर प्रोसेसिंग का, पर स्लॉट पर पर्सन प्रोसेसिंग का टाइम कितना हुआ? 25 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12.5 मिनट्स। मतलब 9 बजे से जो प्रोसेसिंग चालू होगी वो 9:12 और 30 सेकेंड तक चलेगी, और अगली प्रोसेसिंग इस बंदे की 9:12 30 सेकेंड पे चालू होगी और वो 12.5 मिनट और लगा लो तो 9:25 पे एग्जैक्टली खत्म हो जाएगी। उसी कारण 9:25 पे सीधे विजय को बुला लिया है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सो 9:25 पे विजय कम्स एंड विजय was there at 9:20 वेटिंग एट द काउंटर। 5 मिनट का वेट करा, 9:25 पे से बुला लिया। तो सेम सिनेरियो यहां बिल्ड कर सकते हैं कि 9 से 9:12:30 तक तो इस पर्सन की काउंसलिंग हुई, 9:12:30 से लेकर 9:12 ईरा क्या 9:12 पे प्रोसेसिंग के लिए आ पाएगी? नहीं, ईरा केम एट 9:20, तो 9:12 पे स्लॉट खाली था पर उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया क्योंकि 9:15 बजे वाले जो कैंडिडेट्स थे, द कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड एट 9:15 दे एक्चुअली केम एट 9:20। तो जो आई है वो यहाँ पे 9:20 पे, ईरा जो है वो 9:20 से अपनी प्रोसेसिंग चालू कर पाएगी वीजा की। 9:20 से उसको 12.5 मिनट लगेंगे, तो 9:32:30 इतना टाइम तो ईरा को लग जाएगा। अब नंदिनी की टर्न आएगी इस काउंटर पे, तो नंदिनी कितने बजे अपनी वीजा की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर पाएगी? 9:32:30 पे, एंड शी विल फर्दर टेक 12.5 मिनट्स, सो शी विल एंड एट 9:32:30 सेकेंड्स के बाद 12.5 मिनट मतलब 9:45। और यही पूछा है क्लोजेस्ट टू द टाइम, वी नो द एग्जैक्ट टाइम जब नंदिनी की एप्लीकेशन गॉट ओवर। करेक्ट आंसर इज 9:45। सो ये सोच पाना एग्जाम के सिनेरियो में कि विजय को 9:25 पे बुला लिया है और विजय के पहले 2 प्रोसेसिंग खत्म हो गई है, तो हर एक का जो टाइम लगेगा वो 12.5 मिनट का लगेगा। दिस इज चैलेंजिंग, बट वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did the application processing for all US applicants, अब यूएस के लिए हमारे पास 4 काउंटर है, क्वेश्चन में गिवन है किस दिन कितनी बजे खत्म हुई। तो हमें पता है 20 स्लॉट्स हैं। कब स्टार्ट हो रहे हैं स्लॉट्स? 9 बजे स्लॉट चालू हो रहा है, फिर 9:15 पे, ऐसा करते करते लास्ट स्लॉट 1:45 पे है। तो अब ये हमें समझना है कि सारे के सारे एप्लीकेंट्स, अच्छा 10 एप्लीकेशन इन ईच स्लॉट, 50% उसमें से यूएस के थे, मतलब per slot we know that there are 5 applications for US और ऐसे 20 slots हैं, तो टोटल 100 एप्लीकेशंस आई हैं यूएस की। वैसे भी पता था टोटल 200 थी, उसका 50% कर लेते तो 100 एप्लीकेशंस हैं।
पर ये इंपॉर्टेंट है कि पर स्लॉट 5 एप्लीकेशंस आई हैं, तो इफेक्टिवली 9 बजे यू विल हैव 5 पीपल. लेट्स अगेन हाइपोथेटिकली अज्यूम ए बी सी डी ई 5 लोग आ गए, फिर एफ जी एच आई जे ऐसे 5 लोग सवालों पे आ गए. ऐसा करते करते आपके 100 लोग आएंगे. हर स्लॉट में 5-5 लोग आते जाएंगे बिकॉज दैट इज द टाइम गिवन टू देम एंड एवरीबडी कम्स ऑन द सेम टाइम. ये भी ऑल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट आईवी एंड एन अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब यूएस वाले भी सारे लोग टाइम पे आए हैं. अब ये जो 5 एप्लीकेंट्स आए ये कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी. सुबह 9 बजे से लेकर 9:10 तक, बिकॉज दे हैव गिवन दैट यूएस के वीजा प्रोसेसिंग टाइम का नंबर इज 10 मिनट्स. यूएस एंड यूके के लिए 10 मिनट्स इज द टाइम टेकन टू प्रोसेस अ वीजा. क्वेश्चन में गिवन है. तो 9:10 तक काउंटर 1 ऑक्यूपाई हो गया. सेम चीज आई कैन से 9 से 9:10 यहां भी ऑक्यूपाई हो गया, 9 से 9:10 यहां भी ऑक्यूपाई हो गया. तो पहले 4 कैंडिडेट्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड आई कैन से उनको नाम भी दे दिया है हमने, तो लिख देते हैं ए पर्सन यहां चले गया, बी यहां चले गया, सी यहां चले गया, डी यहां चले गया. अब ई वाला जो है वो 9 बजे से आया हुआ है, पर उसके लिए काउंटर ही खाली नहीं है, तो उसे तो वेट करना पड़ेगा 9:10 तक. एंड एट 9:10 ही कैन स्टार्ट हिज वीजा प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन, और 10 मिनट और लेगा तो पर्सन ई जो है वो फ्री हो गया 9:20 पे. इन जनरल कैन आई से 9 बजे वाले जो लोग थे ये 9:20 पे सारे के सारे फ्री हो गए. 4 लोग तो 9:10 पे फ्री हो गए थे, एक ई वाले को काउंटर कम पड़ा तो उसे वेट करना पड़ा. अब हम आते हैं 9:15 वाले जो 5 लोग आए हैं. अब 9:15 पे कोई आएगा, सपोज एफ 9:15 पे आ गया, तो उसे ये 3 काउंटर तो खाली दिख रहे हैं ना, 9:10 पे खाली हो गए थे ये. सो 9:15 पे दिस पर्सन विल गो हियर एंड विल कंटिन्यू द प्रोसेसिंग टिल 9:25. सेम विल हैपन हियर. 9:15 से 9:25 तक की प्रोसेसिंग चलती रहेगी. 9:15 से 9:25 कौन कौन लोग हो गए, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया. अब आए जो है कैंडिडेट आए वो 9:25 तक ये C2, C3, C4 काउंटर्स फुल है. C1 9:20 पे खाली हो रहा है. तो कैन आई से दिस पर्सन कैन गो हियर एट 9:20 एंड कैन गेट फ्री आफ्टर 10 मिनट्स. तो ये 9:20 के बाद 9:30 पे फ्री हो जाएगा. करेक्ट. पर अब जो कैंडिडेट जे है, जे को तो 9:25 तक रुकना पड़ेगा ना, जे को 9:25 तक रुकना पड़ेगा, तो 9:25 से 9:35 तक का टाइम लग जाएगा. तो दिस वाज कैंडिडेट आई, दिस वाज कैंडिडेट जे. तो ये जो बैच है ये पूरे के पूरे लोग कब फ्री हो पाए, 9:35 पे हो पाए. एंड यू कैन कंटिन्यू क्रिएटिंग अ सीरीज इन सच अ मैनर कि पहला बैच 9:20 पे फ्री हुआ, 9 बजे एंटर कर रहा था, तो कहना ऐसे 20 मिनट लग रहे हैं. 9:15 पे एंटर हुआ सेकेंड बैच, 9:35 पे फ्री हो रहा है, अगेन 20 मिनट लग रहे हैं. You can continue the cycle like this and you'll get a pattern saying हर बार हर बैच को 20 मिनट लग रहा है. वो अदर वे राउंड लॉजिकली भी सोच सकते थे ऐसे कि 4 ही काउंटर है, अगर 5 काउंटर बना देते ना तो 10 मिनट में हर किसी की प्रोसेसिंग हो जाती, काम भी खत्म हो जाता, बहुत इजी हो जाता. हर बार 10-10 मिनट लगते तो लास्ट स्लॉट 1:45 के बाद भी 10 मिनट लगते. बट अभी बिकॉज 4 ही काउंटर है तो 5वें पर्सन को ओवरलैप करवाना पड़ रहा है प्रीवियस किसी काउंटर के टाइम के साथ, तो उसके कारण 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं प्रोसेसिंग के. He has to wait for 10 minutes and then the turn will come. तो 10 और 10 20 मिनट्स पक्का लग रहे हैं. या आप लॉजिकली डायरेक्टली भी सोच सकते थे, बट इट बिकम्स इजियर टू थिंक लाइक दिस वंस यू हैव सीन दिस डायग्राम. पहली बार में वैसा सोच पाना इज चैलेंजिंग. तो 20 मिनट का टाइम है, लास्ट स्लॉट आपका 1:45 पे चालू हो रहा है, तो सारे लोगों की प्रोसेसिंग इसके 20 मिनट बाद खत्म हो जाएगी. लास्ट बैच वालों की भी 1:45 प्लस 20 मिनट्स इज 2:05 PM. करेक्ट आंसर इज चॉइस डी. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, I guess this is the last question. या second last होगा, देखते हैं. What is the maximum possible value of the total time in minutes nearest to its integer value required to process all applications in the others category? अब मैंने अभी ये सिनेरियो बिल्ड करके रख दिया आपके सामने कि शेंगेन वीजा में क्या हो रहा है. तो आपके पास this is how, and here you know that I, Ira, Vijay and Nandini have processed their visa applications. यूएस के लिए हमने टाइम स्लॉट्स इस तरह बना लिए थे, अदर्स का भी हमें नहीं पता है. अब इस क्लू पे आते हैं जिस क्लू ने ट्रबल करा था कैट 23 में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को, विच इज व्हेन दे एंटर्ड द ऑफिस एग्जैक्टली 6 of the 10 काउंटर्स वेर आइदर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस. तो अब 9:20 पे विजुअलाइज करना, 9:20 पे ये लोग एंटर करते हैं और ये देखते हैं कि 10 में से 6 काउंटर जो है या तो वो
प्रोसेस कर रहे हैं एप्लीकेशन या प्रोसेस करके अगले का वेट कर रहे हैं। तो कैटेगराइज कर लेते हैं इन काउंटर्स को कि शेंगेन वीजा में जो काउंटर बने उसमें क्या हो रहा है। 9:20 पे ये वाले काउंटर में तो प्रोसेसिंग चल रही है, तो पी लिख देते हैं। ये वाला काउंटर प्रोसेसिंग खत्म कर चुका है, 9:20 पे इट इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तो वी कैन से रेडी टू स्टार्ट द नेक्स्ट। 9:20 पे वेयर ईदर प्रोसेसिंग और हैड फिनिश्ड एंड रेडी टू स्टार्ट प्रोसेसिंग द नेक्स्ट। 9:20 पे स्टार्ट करने के लिए रेडी था। यूएस के वीजा के लिए 9:20 पे यू कैन से रेडी टू स्टार्ट द नेक्स्ट, 9:20 पे जस्ट खत्म हो जाएगी, आर लगा देते हैं। 9:20 इसके बीच में आ रहा है, मतलब प्रोसेसिंग चल रही है, पी प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। कैन आई से 6 काउंटर्स तो यूएस और शेंगेन वीजा में ही मिल गए। तो जो अदर्स कैटेगरी के 2 काउंटर्स हैं, यूके के 2, उनमें तो एप्लीकेशन ही नहीं आई, तो 2 वहां हट गए, 2 अदर्स के हो गए, और बचे हुए 6 में ये स्टेटस चल रहा है पीआर का। तो देयरफॉर इस कैटेगरी में क्या हो रहा है, इस कैटेगरी में 9:20 पे ना तो प्रोसेसिंग हो रही है, ना तो कोई प्रोसेस हो रहा है वीजा का एप्लीकेशन, ना ही दे आर वेटिंग और दे आर रेडी टू प्रोसेस द नेक्स्ट बैच। तो मतलब 9 बजे यहां पे ऑल स्लॉट्स वेर फुल। अदर्स कैटेगरी में वी नो कि 2 लोगों को तो बुलाया ही है, एग्जैक्टली 2 को ही बुलाया है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में समझ लिया। तो 2 एप्लीकेंट्स 9 बजे आ गए होंगे, उनकी प्रोसेसिंग हुई होगी पक्का, कितनी बजे तक चली पता नहीं है। फिर 9:15 पे भी कोई आया होगा और उनकी भी प्रोसेसिंग चली होगी, कितनी देर चली होगी नहीं पता। पर अगर 9:20 से ज्यादा चलती तो देन वी वुड हैव सेड कि वो प्रोसेसिंग वाली कैटेगरी में आ जाते, और ये जो नंबर 6 से बड़ा हो जाता। मतलब 9:20 पे तो उनकी प्रोसेसिंग नहीं चल रही थी, प्रोसेसिंग खत्म करके वो वेट करने का सिनेरियो भी हम बिल्ड नहीं कर सकते। और देयरफॉर इसका मतलब ये है अगला बैच जब 9:30 तक आएगा उसके काफी पहले, इनफैक्ट 9:20 के पहले ही इन्होंने प्रोसेसिंग खत्म कर दी। तो द मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन टेक टू प्रोसेस इज टिल 9:20। तो जो 9:15 वाले कैंडिडेट आए हैं उनको 9:20 के पहले मैक्स अगर आप लेना चाहते हो क्रिटिकल वैल्यू, तो यू कैन टेक कि 9:20 तक प्रोसेसिंग खत्म करके उनको भेज दिया है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एज एन आइडिया, सपोज 2 मिनट ही लगते हैं, तो 9:15 पे कैंडिडेट आए, 9:17 पे फ्री होके चले गए। तो अब ये काउंटर वाला जो सिनेरियो है उसमें रेडी टू प्रोसेस द नेक्स्ट भी नहीं है, क्योंकि अगला कोई वेट ही नहीं कर रहा है, 9:30 पे आने वाला है। दैट इज व्हाट कैट अथॉरिटीज वांटेड अस टू अंडरस्टैंड, बट ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। विल से कि 9:30 वाला भी तो रेडी टू प्रोसेस नेक्स्ट वाली कैटेगरी में जा सकता है, 13 मिनट बाद जाएगा, 9:17 पे आप फ्री हो गए तो। बट यू नो दिस वाज द एम्बिग्विटी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। बट इफेक्टिवली नाउ दे आर सेइंग कि अगर ये 9:20 से ज्यादा एक्सटेंड कर जाता तो अंडर प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आ जाता, 6 काउंटर्स की जगह 7 काउंटर हो जाते, ये वाला होता तो 8 काउंटर्स हो जाते, बट एग्जैक्टली 6 काउंटर्स वेयर अंडर प्रोसेसिंग, विच मींस यहां प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी है। और अगर प्रोसेसिंग खत्म हो चुकी है तो 9:20 पे जब ये 3 लोग एंटर करें, वाई आर वी लुकिंग एट 9:20 वाला टाइम, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बोला है कि जब 9:20 पे ये लोग एंटर हुआ ऑफिस में तो एग्जैक्टली 6 काउंटर ही थे जो प्रोसेस कर रहे थे एप्लीकेशन, तो वो 6 काउंटर मिल चुके हैं हमें, मतलब ये काउंटर एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर रहा था, तो इसकी प्रोसेसिंग 9:20 के पहले खत्म हो गई। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट के सिनेरियो 9:20 पे जा सकती है, मतलब इसमें एक स्लॉट की प्रोसेसिंग का मैक्सिमम टाइम कितना है, 5 मिनट्स। तो नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑल एप्लीकेशंस। तो अदर्स में 2 एप्लीकेशंस हैं पर स्लॉट, स्लॉट्स कितने हैं 20, और हर एक में टाइम कितना लगता है 5 मिनट का, तो 22 ज़ा 45 ज़ा 200 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइम। अ सुपर डिफिकल्ट, एम्बिगुअस, ओवरवेलमिंग, कंफ्यूजेबल डेटा वाला क्वेश्चन जिसे छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो लेट्स सी इफ देयर इज वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट, या हमारा सेट सॉल्व हो चुका है। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन लेफ्ट। Which of the following statements is false? Now we have already summarized this data for Schengen. Schengen में इस तरह का ऑर्डर चलेगा। अदर्स के लिए भी अब हम समझ चुके हैं कि 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। तो अब which of the following statements is false? Application process of M और O के बारे में क्या डेटा है, M and O were scheduled in 9:30 AM slot on that day for visa processing in the others category. अदर्स कैटेगरी में 9:30, तो आप कहीं पर भी ले लो, यहां पर मैंने एम को ले लिया, यहां पर ओ को ले लिया, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ओएम भी आ सकता है, बट दोनों की 9:30 बजे प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 9:25 तक चलेगी, है ना, मैक्स नंबर है वो,
उससे कम भी हो सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ m वाज कंप्लीटेड 935 पे बिफोर n की तो 945 पे हुई है, ये तो ट्रू है, हमसे पूछा है which of the following is false। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ o वाज कंप्लीटेड बिफोर v, विजय की प्रोसेस 937 तक चली है और o की प्रोसेस 935 पे खत्म हो गई, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Application process of O was completed before 945. Yes, definitely this is also true. So this must be the answer. Choice D is the answer. एक बार check कर लें कि ये false क्यों है। Application process of M started. Application process of M started at 9:30. ये पक्का है। 9:30 पे इसकी application process start हो गई। Did it start after N? No, it started before N. नंदिनी की जो process है वो तो 9:32 पे start हुई है। तो definitely this is false. So in terms of understanding, trying to think a lot in this set, हमारी रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, बट एग्जाम के परस्पेक्टिव से दिस इज अ बिग नो कि आप इस तरह के सेट को पिक करें। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वेयर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन वाज ट्राइंग टू आस्क, व्हाट वाज योर ओपिनियन और योर अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू लुक्ड एट दैट क्लू। क्या आप एग्जाम में इस सेट को पिक करते, आपसे बन गया नहीं बना, एक्सप्लेनेशन समझ में आया नहीं समझ में आया? Feel absolutely free to share your observations and comment in the comment box. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.